ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो ये हमने करना है। आइडेंटिटी मींस सिंगुलर, आइडेंटिटी मींस प्लूरल। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी एंगल। ओके, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी बोल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक रिलेशन जो हमने ऑलरेडी कर ली है। वी नो दैट sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. You know it very well. Next हमने क्या किया था बच्चे? cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is also written as 1 upon cos theta. Next हमने किया था बच्चे tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. We can also write tan theta as sin theta upon cos theta and cot theta as cos theta upon sin theta. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने ये आपके साथ स्टार्ट किया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक रिलेशन बोलते हैं बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, different trigonometric ratios. Now I come to the trigonometric identities. We have three standard identities. देखिए 8th क्लास में आपने इसको आइडेंटिटी बोला था, a plus b whole square, a minus b whole square and a square minus b square. These are identities, or you know it very well what they are. A square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square and a plus b, a minus b. These are trigonometric identities. Trigonometric नहीं, इनको बोलते थे बच्चे algebraic identities. What we call algebraic identity. In the similar way, now we are defined trigonometric identities. याद कीजिए बच्चे, सबसे फर्स्ट सेशन हमने क्या डिफाइन किया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. नेक्स्ट 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta. Second trigonometric identity. And 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Third trigonometric identity. These are the three trigonometric identities which we have proved in the first session. अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट सेशन में जाइएगा, हमने इनका कंप्लीट प्रूफ किया हुआ था कि व्हाई वी आर आस्किंग दिस वन, तो ये आपने याद रखना। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चेक कीजिए 1, 2 and 3. These three trigonometric identities, with the help of these algebraic identities and with the help of these relations, I will prove next kind of questions. Check कीजिएगा. Only three things: green, yellow and red. I'm using these format and proving the next kind of questions of your book. अब देखिए कैसे, one by one देखिएगा how we can prove certain kind of questions. Let us start. The first question is to you. He said, prove that sec theta 1 minus sin theta sec theta plus tan theta
इज इक्वल टू 1। देखिए अभी हमारे नेक्स्ट 2-3 सेशंस बच्चे यही क्वेश्चन चलेंगे। वी विल प्रूव left is equal to right. You will see that here are two terms, left hand side and right hand side. We will try 3 approaches. Check कीजिए 3 approaches क्या होंगी। Either I am solving left hand side और right hand side के इक्वल कर दूंगा, or I will start from right hand side, left hand side के इक्वल कर दूंगा, or I will start from left as well as right, half of left hand side and half of right hand side. My suggestion to all of you कि आपने क्या करना है, जब भी आप इस तरह के कोई क्वेश्चंस करें तो आप जो हायर साइड होती है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, उसको टेक आउट कीजिए और लोअर साइड में जो एज यू सी इट, यू विल सी दिस फॉर्मेट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है। तो फर्स्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि जब भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बच्चे, तो एक चीज देखिएगा कि कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। लिसन मी केयरफुली, कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। लाइक हियर इज secant theta, this can be written as 1 upon cos theta, you know it very well, 1 minus sin theta as it is. Now you can write this secant theta plus tan theta as 1 upon cos theta and sin theta upon cos theta. Bas. Okay. Now take the LCM of this part. You will get cos theta 1 plus sin theta, 1 minus sin theta and 1 upon cos theta. मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, just I have simplified it into sin and cos. अब आप क्या चेक करें, you will see that 1 minus sin theta can be multiplied with 1 plus cos theta. Algebraic identities we are using a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. Now come on to this cos and cos. cos square theta. आज मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी अभी, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now we modify this identity and write it as sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So I can say कि sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. Another one, cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. Okay. What we can write, instead of this 1 minus sin square theta, we can write cos square theta over cos square theta, and after cancellation it becomes equal to 1. इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, somewhat are very easy, somewhat are difficult. Okay, this is the way we can solve the questions. फिर से देख लीजिए, these are the questions which we are using. Saket, yes. So we can also prove this in another way. Yes, many ways. Okay. Yeah. You can prove it by other ways. कोई एक बच्चे what I want to tell you कि हम एक मेथड अडॉप्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस, एंड देयर आर मेनी अदर वेज, एक सिंगल नहीं। ओके नहीं बच्चे, आप इसमें बीएचपी वाले मेथड से नहीं कर सकते, दैट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं, एक और करता हूं, ठीक है। देखिए कैसे, जरूरी नहीं है आपने ऐसे करना। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद अनदर मेथड। चेक कीजिए, क्वेश्चन इज दिस, secant थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब लीजिए एक और मेथड देखिए इसी का, secant थीटा
plus tan theta. Now, instead of this secant, you can write it as 1 upon cos. Now, this cos can be written as upon, cancelled. अब चेक कीजिए, 1 upon cos theta minus sin theta upon cos theta. Just this bracket. Now it becomes secant theta plus tan theta. Now you know next one is, sorry, minus. Next one is secant theta plus tan theta. Again it becomes a minus b and a plus b. Then what we can write? We can simply convert it as secant square theta minus tan square theta. Okay, and this we can write it as 1. कहां से लिखा मैंने 1? You know that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. That is the standard identity given to us. And secant square theta minus tan square theta अपने आप ही किसके इक्वल चला जाएगा? 1 के इक्वल. तो this is the another way. बट क्या होता है बच्चे कि इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वी आर गोइंग लाइक दिस. बट अगर आप साइन कॉस में कर लोगे तो बिल्कुल अननोन क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो. यस रितिका. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर आपने फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा. सर आपने फर्स्ट मेथड में राइट हैंड साइड पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे कर दिया? वो मुझे समझ नहीं आया. ये देखो, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा ना. यस एंड सर. दिस इज 1 प्लस साइन थीटा. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल कम? 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आएगा. यस सर. बस ऐसे ही किया. ओके सर. नाउ ही सी cos theta it becomes cos square theta. तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस. आपके लिए बहुत इजी रहेंगे ये क्वेश्चंस. यानी किसी भी अननोन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस एंड देन मूव ऑन. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो, अगर ये डिफिकल्ट नहीं है जो मैंने ये किया, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्क. बट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपने अगर पहले किया है तो यू कैन डू इट. और अगर आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है. अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू, चेक कीजिएगा. इट इज गिवन टू यू, मैं भी एग्जांपल्स ही ले रहा हूं आपके एनसीईआरटी. कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. एंड ही सेड prove that this is equal to cos sec theta minus 1 over cos sec theta plus 1. अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे पॉसिबल करें. अब आपको बताता हूं कि साइन कॉस कैसे इफेक्ट करता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट? cos theta upon sin theta minus cos theta. Cot cos theta upon sin theta, sorry, here is plus cos theta. Now what we can say, take cos theta from the upper part, it becomes 1 upon sin theta minus 1. Take cos theta from the lower part, 1 upon sin theta plus 1. Now what you will check, cos theta and cos theta cancelled. चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया. पता चला कैसे बन गया? Because we know that 1 upon sin theta is equal to cosecant theta and 1 upon sin theta is equal to cosecant theta. You got the answer. ये फॉर्मेशन है बच्चे आपके पास आपके क्वेश्चंस. Got my point? तो इट्स द बेस्ट वे
टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। अभी मैं आपके कुछ और क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं। आज मैं पहले टोटली एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा बच्चे, टोटली एनसीईआरटी, फिर हम उसके बाद किसी और में आएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद these are called trigonometric identities. Okay, so let us start. I am starting from question number 5 और आज हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी सिंप्लीफाई करेंगे। And my first part is, he said, अच्छा, अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि ये एमसीक्यू में कैसे आएंगे क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। देखिए आपको ऐसे दिया जाएगा, कोसिकेंट माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शंस। ओके, जैसे अभी क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। अब वो इसके साथ 2 और लगा देगा, 3 और लगा देगा। दिस इज एमसीक्यू। ओके, अब चलिए, जैसे अगर आपको ज्यादा देखना हो तो आज पॉलिनोमियल का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको देख लीजिएगा। उसमें आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने किस में कन्वर्ट किए, एमसीक्यूज में कन्वर्ट किए। ओके, चेक कर लीजिएगा उनको। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और विद राइट हैंड साइड। तो चेक इट, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें। तो cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एज दिस। ओके, मैंने जस्ट क्या कन्वर्ट किया, कॉसिक 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ टेक द एलसीएम, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए अवर फर्स्ट पार्ट इज, जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस, वो हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चे, आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, कीप द राइट हैंड साइड इन योर माइंड कि आपने कहां तक पहुंचना है। ओके, चेक कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इज हियर, तो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते जाइए कि क्या ट्रिक करने जा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए कितने कैंडिडेट को पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ जी, एवरीवन इज ओपन। सर साइन थीटा को इधर लेके तो माइनस ये आपने बोला था। बिल्कुल समझ नहीं आया सर। ओके बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितने कैंडिडेट को पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. It is in relations. यस सर। यस सर Because sin square theta minus cos theta is equal to 1. यस। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या था बच्चे, व्हेन वी आर, मैंने आज ही आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बताया था ना। तो अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने वही चीज यूटिलाइज की है। तो इंस्टेड ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग 1 माइनस cos square theta. Now 1 minus cos square theta can be written as 1 cos theta whole square, यानी it is a square minus b square, a square minus b square। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आ जाएंगे, 1 minus cos theta and 1 plus cos theta।
ओके, तो इट कैन बी रिटन एज 1 minus cos theta whole square divided by 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. You will check. You got your answer. 1 minus cos theta, एक part खत्म हो गया. Now the leftover is 1 minus cos theta over 1 plus cos theta, which is your right hand side. So I'm using the trigonometric identity. हाँ जी, Jasmine. So how can we write that 1 minus cos square theta is 1 square minus cos theta? Repeat. 1 minus cos square theta को हम 1 square minus cos square theta कैसे लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? ये देखो, ये 1 minus cos square theta है, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? Yes sir. और cos square theta को मैंने cos theta का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. Okay sir. अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके मैंने पार्ट कर दिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी. Okay sir. ओके, तो नाउ वी कैंसल इट आउट एंड वी गॉट द आंसर. ओके बच्चे, हमारे पास ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं है. वी हैव ओनली 3 आइडेंटिटीज, ओनली 3 आइडेंटिटीज. ठीक, तो 3 आइडेंटिटीज को हम 1 बाय 1 यूज करते हैं. उसमें से 1 ये आ जाती है, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. आप तब ध्यान नहीं देते जब मैं करवा रहा होता हूं. ठीक, एक आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा. ओके, और एक आइडेंटिटी और क्या थी, 3. ठीक, तीनों बता देता हूं. दीज आर 3 आइडेंटिटीज. बस इन्हीं को यूज करता रहूंगा आगे पीछे. हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्ट किसी भी तरह से ये आइडेंटिटीज क्या होंगी, यूज हो. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम. इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का पार्ट 2. cos a ओवर 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए over cos a, and he said prove that 2 sec a. अब आप एक चीज चेक कर रहे होंगे, when we have started these questions, तो मैंने आपको कहा था बच्चे पहला काम क्या कीजिए, मैंने आपको कहा था पहला काम ये कीजिए कि कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस. बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, साइन एंड कॉस इज देयर. तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस. वन इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. इफ यू हैव अ सिंगल टर्म, देखो अगर मेरे पास ये सिंगल टर्म होती तो आई विल अप्लाई रैशनलाइजेशन. बट नाउ वी हैव 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स में तो हमारे पास सिंपल है कि वी कैन ऐड देम. ओके, तो व्हेन वी ऐड देम, तो वी विल राइट इट एज 1 प्लस साइन ए, टेक द एलसीएम एंड कॉस ए, multiply cos square a and 1 plus sin a whole square. मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक या सॉरी सिंपल अलजेब्रा अप्लाई. नाउ आई विल ओपन दैट. cos square a प्लस, देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab divided by 1 plus sin a and cos a. Check it. अब आप देखिएगा जो हम इसमें नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो. अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी? एनीबॉडी? Sir, one. Sir, 1. वेरी गुड, 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है. तो इंस्टेड ऑफ दिस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a आई कैन राइट 1. ये 1 आपके पास ऑलरेडी है एंड 2 sin a.
तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज 2 + 2 sin A. Okay, now from this I can take 2 as a common. तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 + sin A ओवर, लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है, 1 + sin A into cos A. 1 + sin A, 1 + sin A cancel, we are left with 2 upon cos A. और आपको पता है 1 upon cos A को what we can write, secant A. ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 upon cos A को हम क्या लिखते हैं, secant A से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड वी विल फाइंड इट आउट. यस अखिलेश. हरिओम. सर ये समझ में आया कि 2 upon cos A = 2 sec A कैसा है? अच्छा ये बताओ, ये आ जाएगा 1 upon, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, हाँ जी सर. तो फिर ये बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. अच्छा. लड्डू बाद में खा लेना, पहले बताओ. सेम थिंग है बच्चे, बिकॉज वी नो दैट 1 upon cos A की वैल्यू क्या होती है, secant A होती है, दैट इज द रिलेशन. तो हमने 1 upon cos A को क्या लिख दिया, secant A लिख दिया, एंड वी गॉट द आंसर. ओके, तो ये रिलेशन तो बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे. मैंने आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री शुरू इन रिलेशन से की थी, ठीक है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं. तो पहले तो मैंने ये रिलेशन बताए थे आपको फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, पहले सेशन में. फिर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन किया था, प्रूव किए थे इनके. ओके, एंड आफ्टर दैट फिर हम इसमें आए थे कि वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं. तो 1 upon cos A = secant A, और आपने यही क्या करना था, प्रूव करना था. और यही ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे, अगर ये आपको आता है तो यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगी. और ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी इसीलिए लगती है कि उनको रिलेशंस याद नहीं होते. ओके, अब बहुत सारे ट्रिक इन्वॉल्व है. अब जैसे मैं अब क्वेश्चन देखिए जो करूं, तो यू विल फाइंड इट. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक कीजिए. व्हाट इज सेड, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, cot थीटा over 1 - tan theta, which is equal to 1 + secant theta into cosecant theta. ये है बच्चे सही में ट्रिकी क्वेश्चंस. ओके, देखिए ना तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस है और ना ही आपके पास राइट हैंड साइड में साइन कॉस है. बट मैंने जैसा आपको कहा कि आप इसमें जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करूंगा, आइडेंटिटीज यूज करूंगा. तो आपको फोकस रखना है कि मैं कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को यूटिलाइज कर रहा हूं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करूंगा, यूटिलाइजेशन में लूंगा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस. ओके, या ऐसा कह लीजिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम प्रूव करने जाएंगे. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि tan को मैं क्या लिखता हूं, साइन अपॉन कॉस. सिमिलरली कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन. ये तो हो गया आपके पास. अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली फार्मूले के साथ ही शुरू करूंगा, तो आप फार्मूले के साथ भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब फार्मूले के साथ शुरू करने का मतलब क्या है कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए मत, सीधे इसको क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए. ओके, बट वी आर स्टार्टिंग विद, एज आई सेड टू यू, tan theta can be written as sin theta over cos theta, and cot theta can be written as cos theta upon sin theta, जैसा आपको बताया गया. Similarly, the next one,
cos theta upon sin theta and 1 minus sin theta upon cos theta. Okay, now we move further. Take the LCM. अपर वाली टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चे, sin theta upon cos theta as it is. Take the LCM on the lower end. यहां इंटरेस्टिंग चीज बनेगी आपके लिए, ठीक? तो वो इंटरेस्टिंग चीज आपने देखना है और सॉल्व भी करना है. टेक एलसीएम sin theta, it becomes sin theta minus cos theta. On the right hand side, cos theta sin theta. यहां नोटिस कीजिएगा बच्चे, cos theta minus sin theta. मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कुछ नया नहीं किया, जस्ट आई एम टेकिंग द एलसीएम. अब आप सबको पता है, चेक कीजिए क्या होने वाला है. दिस साइन विल गो टू द अपर साइड एंड दिस कॉस विल कम टू द लोअर साइड. तो आपके पास ये टर्म्स क्या कन्वर्ट हो जाएंगी. प्लीज अगर किसी को ना पता चले तो मेरे से पूछ लीजिएगा. साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा sin theta minus cos theta. जस्ट मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं. देखिए फिर से, cos on lower end और this sin will go to the upper end. तो sin and sin square cos नीचे आ जाए. Similarly, this cos will go to the upper end and this sin will come to the lower end. तो it becomes plus cos square theta over sin theta into cos theta minus sin theta. बच्चे अगर आपको यहां तक आ गया है तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. पहले तो ये बता दीजिए, क्या यहां तक आप सबके पास रेडी है? हाँ जी. सर एक बार रिपीट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या स्टेप किया बच्चे, tan एंड cot को सभी को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, sin एंड cos में. तो ये sin एंड cos में कन्वर्शन हो गई, जस्ट sin एंड cos. इसके बाद आप सबको पता होगा कि यू नो दैट कि a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, दिस कैन बी रिटन एज AD अपॉन BC. तो मैंने वही अप्लाई किया है, दिस इज A अपॉन B C अपॉन D. तो मैंने इसको AD अपॉन BC करके सिंपल सा कर. ओके, अब एक छोटा सा ट्रिक आप सबके साथ करूंगा और आप उसको समझना है आपने सब. देखिए, here is cos theta minus sin theta. ओके, प्लीज इसको देखिएगा जो मैं भी करने जा रहा हूं. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसमें से माइनस क्या कर लिया, कॉमन कर लिया. और माइनस कॉमन करने के बाद यहां पे प्लस की जगह पे क्या ले आया, माइनस ले आया. अब आप ये पूछ सकते हैं व्हाई, बिकॉज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सिमिलर करने के लिए, बिकॉज अब आगे देखिए ना इससे क्या इफेक्ट होगा. व्हेन यू विल टेक द एलसीएम तो इट विल कम एज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना. अब देखो बच्चे, अब एलसीएम उलसीएम तो आई थिंक आप सब ले ही लेते होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं. तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे.
जो आप जानते हो अच्छी तरह से, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाइन्थ क्लास में की थी आपने, और आइडेंटिटी होती थी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, देखो ये जो साइन क्यूब है दैट कैन बी रिटन एज साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब। अब मैं इस पे आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हियर इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लोअर में जो भी चल रहा है उसको लिखिए, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल्ड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो 1 instead of this I have written it as 1 plus sin theta cos theta, और इनके लोअर पार्ट में क्या है बच्चे? cos theta and sin theta। तो अभी पार्टी शुरू होगी, ठीक है? चेक कीजिए, if you have a plus b upon c, तो you can easily write it as a upon c and b upon c। okay, तो I can write it as 1 upon cos theta over sin theta plus sin theta cos theta upon cos theta sin theta। sin theta cancel, cos theta cancel, तो it becomes 1। अब आ जाइए बच्चे, अब आप सारे देखिए, 1 upon cos theta can be written as secant theta, 1 upon sin theta can be written as cosecant theta। check your answer, this is your right hand side। ऐसे भी करने पड़ सकते हैं हमें क्वेश्चंस, और इनको अभी अच्छी तरह से कर लीजिए, 11th में आपके बहुत काम आएगा। यस आदर्श। Sir, in the top, sir, can you go up, sir? Sir, how you got minus, sir, here? Just I have taken minus common from this point. Where is that sin theta minus cos theta part? हाँ, yes। Thanks. देखो, if you have a minus b ना, हाँ, तो you can take minus common, तो you can write it as b minus a। okay, हाँ, तो मैंने वही लिखा है, तो I take as minus common from their side। Yes, thank you, Saket। sir. Sir, we can also prove these questions by writing denominator in the form of tan theta. Yes, you can, but वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। You can। No, sir, that's the short process comparing this process. नहीं, I have already said to you there are many methods to solve any kind of questions। You will try it, because if you know the identities and you can apply the identities, so you will find every questions, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, बट मैंने आपको जैसे कहा कि इट्स द इजीएस्ट वन इफ यू गो विद साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इट्स इजी फॉर यू। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4th पार्ट, ठीक? इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ही सेड, उसने हिंट भी प्रोवाइड किया आपकी बुक में, ही सेड 1 plus sec a
अपॉन sec A is equal to sin square A over 1 minus cos A। अब देखो ये डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉस है ना कन्वर्शन। तो हम इसको किस तरह से लेंगे वो देखिएगा। तो आई कैन राइट इट एज इन अ सिंपल वे, जैसे हम करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस सीकेंट ए आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस ए। Instead of secant A, I can write it as 1 upon cos A. Just that. अभी देखते जाइए क्या होने वाला है। Take the LCM. This becomes cos A plus 1 over 1 upon cos A. नोटिस कीजिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहा हूं। This cos A and cos A cancelled. Now this becomes cos A plus 1. अब देखिए बच्चे, आपके लिए ये एक दिक्कत वाली बात होगी। ठीक, दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड गेट द लेफ्ट वन। ठीक, और यू शुड स्टार्ट विद दिस प्रोसेस जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोसेस होता है बच्चे, 9th क्लास में हमने किया था, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कॉस ए एंड डिवाइड विद 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो अपर टर्म विल कम एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वाई ए प्लस बी and a minus a square minus b square, and lower term will come as 1 minus cos a। तो 1 minus cos square a, इसको कैसे लिखा जा सकता है, चेक कीजिए। 1 minus cos square a can be written as sin square, we know it, और नीचे आपके पास क्या था, 1 minus cos a है। ओके, दिस इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा एक चीज और देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे नहीं आता एंड आप इस स्टेप तक पहुंच गए, मैं इसको रेज कर रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। सपोज दैट आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड शुरू होगी। नाउ यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को आप कैसे शुरू करेंगे, तो यू कैन राइट दिस राइट हैंड साइड sin square a as 1 minus cos square a over 1 minus cos a. Now this is a square minus b square, which can be written as a minus b and a plus b over 1 minus cos a. तो 1 minus cos a, 1 minus cos a cancelled। ऐसे भी किया जा सकता है इसको। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि आप टोटली लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लेके जाना चाहते हैं या टोटली राइट हैंड साइड को किसमें लेके आना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कुछ करेंगे, हम थोड़ा सा लेफ्ट सॉल्व करेंगे एंड थोड़ा सा क्या करेंगे, राइट हैंड सॉल्व करेंगे। तो इट्स अप टू यू। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपके पास ट्रिक बेस्ड होते हैं, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो इट्स टोटली अ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक, वो ट्रिक किस तरह का है, ही सेड साइन थीटा माइनस cos theta plus 1 over sin theta plus cos theta minus 1 is equal to secant theta minus tan theta। यानी हमने लेफ्ट को किसके इक्वल करना है बच्चे, राइट के इक्वल करना है। अच्छा, इस क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं कि आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो हमने उस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं वो देख लीजिएगा।
कि how we can start it या how we can simplify it, this kind of questions. तो वो अभी मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूं तो चेक कीजिएगा। एक छोटा सा ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं। डिवाइड इट विद cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट becomes tan theta, second is -1, and this is sec theta. Now in the lower part, tan theta 1 minus sec theta. ओके, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। tan थीटा प्लस secant थीटा -1। ओके, दूसरा इसको ऐसे रहने दीजिए, tan थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस ट्रिक को पकड़ गए तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या ट्रिक है। Now instead of this one, okay, or instead of this one, अच्छा इसको भी हम थोड़ा सा सेटल कर ही लेते हैं, लोअर वाले पार्ट को बच्चे सेटल कर लेते हैं। तो आई कैन राइट इट एज, जो हमारे पास लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस secant थीटा एंड +1। दो तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चे। देखो, अगर आपने लोअर पार्ट में प्रूव करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, और अगर अपर पार्ट में प्रूव करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस वन। एक आइडेंटिटी हमने की थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमने लिखा था ये किसकी इक्वल है, secant स्क्वायर थीटा। यू नो इट वेरी वेल। तो 1 किसकी इक्वल होगा बच्चे, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जब ये हम क्वेश्चन करवाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कमजोर दिल वाले इसको ना देखें, ठीक। तो चेक कीजिएगा, सी इट हियर, दिस वन कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक चीज और ट्रिक देखिए, दिस secant स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज secant थीटा प्लस tan थीटा एंड secant थीटा माइनस tan थीटा। यानी इसके मैंने दो फैक्टर बना दिए। जस्ट वन को क्या लिख दिया, secant थीटा प्लस tan थीटा एंड secant थीटा माइनस थीटा। कुछ नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके फैक्टर बना दिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप चलिए क्या होगा। तो अपर टर्म इज tan थीटा प्लस secant थीटा -1, और लोअर में देखिए क्या हो गया, tan थीटा माइनस secant थीटा। इंस्टेड ऑफ दिस वन वी हैव रिटन secant थीटा प्लस tan थीटा एंड secant थीटा माइनस tan थीटा, जस्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट। ओके, अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, सी दिस वन, secant थीटा माइनस tan थीटा एंड tan थीटा माइनस secant थीटा, दोनों सेम ही चीजें हैं ना। वन इज a माइनस बी, सेकेंड इज b माइनस ए। और आप प्रूव भी क्या करने जा रहे हैं, secant थीटा माइनस tan थीटा। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, I can take secant theta minus tan theta as common from the lower part, और आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अपर पार्ट को ऐसे लिखिए, tan theta plus secant theta -1, and from lower part take secant theta minus tan theta as common।
देखिए बच्चे, यहां क्या कॉमन आ गया, इट विल लेफ्ट विद -1. इट कैन बी रिटन एज secant थीटा प्लस tan थीटा. और नोट कीजिए बच्चे, ये और ये पूरे का पूरा सेम टर्म कैंसल्ड. नाउ योर आंसर इज 1 अपॉन secant थीटा माइनस tan थीटा. आई नो दैट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे. तो ये तो अभी बिगनिंग है बच्चे, हम इसमें और भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे. तो जैसे जैसे आप इनको स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट द फन. ओके, नेक्स्ट सेशन में इसको रेडी रखेंगे, डोंट वरी.